Dear learners, greetings of the day. So, welcome to English Mentor. This is our second session of English Capsule 2 Common Errors. In this particular topic, I'm just going to teach you some common errors which are repeated by us. And we usually commit mistake by using these common errors. So let us start without any further delay. But before we proceed, I would like to request each one of you, please subscribe my channel, like and share and comment. So now let us start our topic. So I truly believe this particular screen is visible to you. Now let us start. Rule number 1 says, so yours sincerely with apostrophe and without apostrophe. Now, let me make it clear one thing. This your with apostrophe, it does not exist in English. Why so? Because this is incorrect expression of English. Why so? Because see, apostrophe shows your possession. Apostrophe क्या दिखाती है? आपकी possession को show करती है. योर जो होता है वो अपने आप में भी ये पोजीशन शो करता है. ठीक है, तो इस वजह से अपोस्ट्रोफी एस जो होता है ये इनकरेक्ट एक्सप्रेशन होता है. नाउ वी हैव टू एक्सप्रेशन इन इंग्लिश. आइदर योर, या तो होता है आपका योर, अपोस्ट्रोफी वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या होता है योर, या तो होता है योर्स, या होता है योर. नाउ विच वन इज करेक्ट एंड विच वी हैव टू यूज? बोथ आर करेक्ट, बट हाउ टू यूज दीज टू एक्सप्रेशंस? नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट. देखिए, अगर अगर बाद में आपका नाउन दिया होता है तो उससे पहले आपका पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा जो कि योर होता है. और बाद में अगर बाद में आपको एक एडवर्ब दी गई होती है तो उससे पहले आपका पजेसिव प्रोनाउन आ जाता है. राइट? इन शॉर्ट, देखो अपोस्ट्रोफी वाला तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश. अगर बाद में आपका एडवर्ब दिया होता है तो पहले आप पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, और अगर बाद में नाउन दिया होता है इन दैट केस वी हैव टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. मूविंग ऑन, रूल नंबर 2. So now my dear student, enter is a verb which generally does not take in or into, but usually we commit mistake by adding into with enter. अब नॉर्मली क्या देखें, क्योंकि एंटर जो होता है इसके अपने आप के मीनिंग में ही इनटू इंक्लूड होता है, तो इस वजह से ना तो ये इनटू लेके चलता है और ना ही अपने साथ इन लेकर चलता है. अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं. ही एंटर्ड इनटू द क्लास. अब ये इनकरेक्ट है क्योंकि एंटर इनटू नहीं लेके चलता है. ही एंटर्ड इन द क्लास, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज एंटर डज नॉट टेक इन विद इट ऑल्सो. सो दिस इज common error usually we commit, right? But there is an exceptional case in case of enter. देखिए, generally enter के साथ ना तो into लगता है ना in लगता है, but there is an exceptional case we can use into with enter, but in one condition, when you talk about agreement or contract. जब आप कभी agreement या contract को लेकर बात करते हैं, so in that case we can use enter with into, we can use in that particular sentence. देखें, he entered into an agreement. अभी हमें agreement की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे into correct माना जाएगा. So in general we do not use in or into with enter, but when you talk about agreement or contract, in that case we can use into. This is an exceptional case. Moving on, rule number 3. Now I would like to tell you the difference between and among. देखें, जब कभी आप दो लोगों की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं between. दो से ज्यादा के लिए हम among यूज कर लेते हैं. But my dear student, do you know between can be used for more than two persons or two things also. But when you have been given a specific number or names, अगर आपको स्पेसिफिक नंबर या नेम्स दे दिए जाए तो उस केस में चाहे वो दो से ज्यादा ही क्यों ना हो, फिर भी हम बिटवीन ही यूज करते हैं. अब एग्जाम्पल को देखते हैं. A series is going to be played among India, Australia, England. These are more than two countries, right? So among is incorrect over here. Why so? Because between can be used if specific number or names are given.
In this case, specific names are given. So instead of writing among, we have to use between in the sentence. तो यहाँ पर ये among है, ये wrong हो जाएगा और between is the correct answer. Now my dear student, rule number 4. There is a phrasal verb जिसको हम बोलते हैं cop with. Cop with. करेक्ट फॉर्म तो यही होता है cop with, जिसका मतलब होता है टैकल करना. टैकल, राइट? अब जनरली मैंने देखा है लोगों को कॉप अप विद बोलते हुए. कॉप अप विद, विच इज इनकरेक्ट. कॉप अप विद नहीं होता है, ये जो अप लगा देते हैं यहाँ पे, ये एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है विच इज नॉट रिक्वायर्ड. यू शुड कॉप विद द सर्कमस्टांसेस इज द करेक्ट आंसर. देखिए, यू शुड कॉप अप विद द सर्कमस्टांसेस, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि अप सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे अनवांटेड है. You should cope with the circumstances. Cope with means you should tackle the circumstances. तो cope with होता है, ना कि cop up होता है. Cope up with, up नहीं आता है, right? Moving on. Yes, now we have two prepositions here. One is in spite of and despite. Now my dear, let me tell you, जब आप in spite को use करते हैं, in spite को use करेंगे, तो वहां पर आप of का use करते हैं. और जब आप डिस्पाइट यूज करते हैं वहां पर आप ऑफ का यूज नहीं करते हैं. ठीक है? अब जनरली एरर कैसे आता है, क्योंकि डिस्पाइट तो ऑफ लेता नहीं है, तो इसलिए उसके साथ ऑफ लगा कर दिया जाता है. नाउ बोथ हैव द सिमिलर मीनिंग. के बावजूद, देखिए, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड टू विन द कंपटीशन. ये तो करेक्ट है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जिरंट लगता है आपका. ठीक है? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड टू विन द कंपटीशन. लेकिन मैंने यहां लिखा डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड टू विन द कंपटीशन. ये इनकरेक्ट है. व्हाई सो? बिकॉज इन स्पाइट तो ऑफ लेके चलता है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है. बट बोथ हैव द सिमिलर मीनिंग. अब करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस इज द करेक्ट आंसर. इन स्पाइट ऑफ लेकर चलता है, डिस्पाइट विदाउट ऑफ आता है. नाउ in case of imagination, when you talk about imagination on unreal situation or hypothetical situation, जब आप कोई कल्पना की बात करते हो, सिर्फ एक कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो. So in case of imagination, my dear student, what do we use? Let me tell you. उस केस में हम what use करते हैं. Just look at this example. I wish. I wish का मतलब हो गया काश. देखें, मैं बोलता हूं I wish I was the Prime Minister of India. अब देखो, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता. अब रूल ये बोलता है, whenever you talk about an imagination, it doesn't matter what subject you are using. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे I, you, they, we, he, she, कोई भी सब्जेक्ट यूज क्यों ना करें. So instead of writing was, we have to use in that particular sentence, because in case of imagination, we have to use were with all the subjects. राइट? तो यहां पर was नहीं, वर आना चाहिए आपका. Now we have rule number 7. See, it's very interesting rule with article. मतलब ये आर्टिकल के रूल के लिए यूज किया है. देखिए, the Prime Minister Mr. Narendra Modi launched some schemes. So what is the error in this particular sentence? अगर आपको मान लो ये डेजिग्नेशन है, हाईली डेजिग्नेशन के साथ हम नॉर्मली आर्टिकल यूज करते हैं, दिस इज राइट, करेक्ट होता है. लेकिन अगर उसके साथ आपको नेम भी दे दिया जाए उसी बंदे का, तो इन दैट केस वी डू नॉट यूज आर्टिकल द. देखिए, द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड सम स्कीम. अब प्राइम मिनिस्टर हालांकि हाईली डेजिग्नेशन है तो द आना चाहिए, लेकिन इसके साथ नाम भी दे दिया गया है. सो इन दैट केस वी विल नॉट यूज आर्टिकल द विद डेजिग्नेशन. तो आना क्या चाहिए? द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च सम स्कीम्स. तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला है, अगर हाईली डेजिग्नेशन के साथ नेम दे दिया जाता है, सो इन दैट केस वी विल नॉट यूज द. उस केस में हम द यूज नहीं करेंगे. नाउ रूल नंबर 8. माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव यूजुअली सीन whenever whenever we introduce, right, some people they use these wrong expressions such as me Anil, me Ram, myself Ram. लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर. देखें, मी क्या है आपका? मी एक ऑब्जेक्टिव केस आपका, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. और माई सेल्फ हो गया आपका रिफ्लेक्सिव. माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, राइट?
तो दिमाग में एक चीज रखिए कि वी कैन नेवर स्टार्ट अ सेंटेंस विद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. We can never start a sentence with objective pronoun or reflexive pronoun. तभी जब कुछ लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मी राम, मी अनिल, माई सेल्फ राम, so this is incorrect. This is wrong expression, right? Because we cannot use objective case or reflexive case in case of any particular sentence. हम नॉर्मली किसी भी सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. सो देयरफॉर दिस इज इनकरेक्ट. माई सेल्फ ऑल्सो इनकरेक्ट. What should be the correct answer? My name is Anil. My name is Ram. I am Anil or I am Ram. So we can use this expression only. Me and myself are incorrect expression, and these expressions should be avoided. Now, so my dear student, so I tried my best to just simplify these common errors. So I would expect you do not commit such mistakes. So again, it's my humble request to you all. If you have not subscribed my channel, please subscribe it, like, comment, and share. So thank you very much for being patient listener. God bless you. Stay happy and blessed. I will come and keep updating your knowledge. Have a great day.